اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا فرمایا، اور انسان کی اہمیت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلافت کا تاج انسان کے سر پر رکھا، اور صرف انسان کے سر پر ہی رکھا۔ 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمانے والے پروردگار نے سوائے انسان کے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بتایا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ بات کیا کوئی معمولی بات ہے؟ اتنے ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود انسان ہی کو آخر خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ فرشتے پہلے سے موجود تھے۔ جب انسان کی تخلیق کی بات کی جا رہی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار عالم تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان کائنات کا ایک ایسا اہم عنصر ہے کہ فرشتوں کے جیسی پاک نورانی مقدس مخلوق بھی فوری طور پر انسان کی عظمت نہیں سمجھ سکی۔ جیسا کہ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں، میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نام عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں، کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معما ہوں میں۔ وہ ابلیس جس کو لوگ عزازیل کہا کرتے تھے، وہ ابلیس کہ جو فرشتوں میں درس دیا کرتا تھا، وہ ابلیس کہ آسمانوں میں جس کے جلسے ہوتے تھے، جس کے باعث کی محفلیں منعقد ہوتی تھیں، وہ ابلیس انسان کے مقام کو نہیں سمجھ سکا۔ عزیزان گرامی، جب ابلیس کے جیسا بڑا عالم انسان کے مقام کو نہیں سمجھ سکا، مرتبے کو نہیں سمجھ سکا، تو دوسرے لوگ آسانی سے کہاں انسان کے مرتبے کو سمجھ پائیں گے؟ اور شیطان کی الجھن کا، اس کے کنفیوژن کا سبب کیا تھا، وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ آخر شیطان سمجھ کیوں نہیں سکا انسان کے مقام کو؟ تو شیطان کو ایک ہی جگہ آ کر دھکا لگا، ایک ہی جگہ آ کر شیطان گمراہ ہوا۔ وہ ایک ہی ذریعہ تھا، ایک ہی سبب تھا، وہ کیا تھا؟ اس نے خود کہا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کے ذریعے سے انسان کا جسم تخلیق پایا، یہی بات ابلیس کے لیے گمراہ ہونے کا سبب بن گئی، انسان کے مقام سے غافل ہونے کا سبب بن گئی۔ تو ابلیس کا دماغ آ کر اٹکا تو کدھر اٹکا؟ مٹی میں اٹکا، پیکر خاکی میں اٹکا۔ ابلیس نے اس موقع پر کہا تھا کہ یہ مٹی ہے، اور آج تک آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے دلوں پر، دماغوں پر ابلیس کا تسلط ہے، وہ بھی آج تک اتنے ہزار سال گزر جانے کے باوجود اسی بشریت میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی راکھ اور مٹی کے ڈھیر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اس نے کہا کہ انسان مٹی سے بنا ہے، مگر یہ نہیں دیکھ سکا کہ انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ جیسا کہ خود قرآن مجید میں انسان کے خالق پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ آدم علیہ السلام کا جسم مبارک پہلے بنایا گیا، روح اس میں بعد میں پھونکی گئی۔ مفسرین نقل فرماتے ہیں کہ جسم بہت پہلے تیار ہو چکا تھا، روح بعد میں پھونکی گئی۔ جب جسم پہلے سے موجود تھا، تیار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہیں کروایا۔ جب آدم کے جسم میں روح پھونکی گئی، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نور کی تجلی سے آدم کے وجود کو جب مشرف فرمایا تو اس کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ دکھنے میں مٹی تھی، مگر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار کی جلوہ گری تھی، جس کو شیطان سمجھ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس آدم میں جو روح پھونک رہا ہوں میری روح ہے، میرا دم میں اس میں پھونک رہا ہوں۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دم اس میں پھونکا جا رہا ہے، یہ دیکھتے رہ گیا کہ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ جیسا کہ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں، آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھی، آدم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دم جب آدم میں آیا تو در حقیقت آدم اللہ کا خلیفہ بنے، مسجود ملائکہ ٹھہرے، اشرف المخلوقات بنے۔ آدم میں جب تک دم نہ تھا یہ خاک تھی، آدم نہ تھا۔ آدم میں جب کہ دم ہوا یہ خاک سے آدم ہوا، یہ بھید سارا دم کا ہے اور دم اسی ہمدم کا ہے۔ ابلیس یہ نہیں سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو منزلیں انسان کو میسر آنے والی ہیں، وہ منزلیں کسی بھی مخلوق کو میسر نہیں آ سکتی۔ معراج کی رات بشریت کا راز فاش ہوا، 24 گھنٹے
जिंदगी का तमाम वक्त सिदरा पर गुजारने वाले फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जहाँ नहीं जा सकते थे, आमिना के घर में पैदा होने वाला वहाँ जाकर आ गया। जिसको दुनिया अब्दुल्ला का बेटा कहती है, वो अर्श पर जाकर अल्लाह का दीदार करके लौटा और जिब्रील सिदरा पर अपने पर समेट कर खड़े रहे। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान का ये मुकाम है, उसका ये मर्तबा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जन्नत के जैसा मुक़द्दस मुबारक पाक मुकाम जो बनाया है, किसके लिए बनाया है? आखिर जन्नत के मकीन कौन है? जन्नत में रहेंगे कौन? कौन रहेंगे? इंसान रहेंगे। इंसानों के अलावा जितने जानदार पैदा किए गए हैं, मिसाल के तौर पर जानवर, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, बेजान अशिया, दरख्त, नबातात, जमादात वगैरह, क़यामत कायम होने के बाद ये सब के सब मादूम कर दिए जाएंगे, फना कर दिए जाएंगे। कोई चीज़ इनमें से ना बाकी रहेगी, ना जन्नत में जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, बाकी रहेंगे तो इंसान बाकी रहेंगे, फरिश्ते बाकी रहेंगे, जिन्नात बाकी रहेंगे। और जिन्नात भी जो बाकी रहेंगे तो उनका बाकी रहना भी दो तरीक़ों पर होगा। जो जिन्नात दुनिया में ईमान ला चुके थे, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इख्तियार कर चुके थे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के बाद उनको मादूम कर देगा, वो फना कर दिए जाएंगे। और जिन जिन्नात ने कुफ्र इख्तियार किया था, गुमराही के दलदल में फंसे रहे थे, वो जिन्नात अलबत्ता दोज़ख का ईंधन बनेंगे। तो इससे मालूम होता है कि काफिर जिन्नात दोज़ख में जाएंगे, मगर मोमिन जिन्नात जन्नत में नहीं जाएंगे, उनको फना कर दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे फिर उनको फ़ायदा क्या हुआ इतने साल इबादत में गुजारने का, इतने साल अल्लाह रसूल की रज़ा और खुशनुदी में गुजारने का? आखिर उनको सिला क्या मिला, फ़ायदा क्या मिला? उनके लिए फ़ायदा यही है कि अज़ाब से बच जाएंगे, यही उनके लिए इनाम होगा। दोज़ख से अपनी जान छुड़ा लेने में कामयाब हो जाएंगे, यही उनके लिए बदला होगा। तो जन्नत, अब उसके बाद काफिर जिन्नात दोज़ख में चले जाएंगे, मोमिन जिन्नात फना हो जाएंगे। अब दो ही मखलूक बची रहेंगी, या तो इंसान होंगे या तो फरिश्ते रहेंगे। अब जन्नत में रहेंगे तो कौन रहेंगे? इंसान ही रहेंगे। फरिश्ते भी अगर जन्नत में रहेंगे तो इंसान की खिदमतगार बनकर रहेंगे, जन्नत के मालिक बनकर नहीं रहेंगे। जन्नत का मालिक बनकर, जन्नत का मकीन बनकर अगर कोई जन्नत में रहेगा तो यही इंसान रहेगा, जिसके सर पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खिलाफत का ताज सजाया। आजकल बड़ा अजीब व गरीब माहौल हो चुका है, फितने व फसाद का दौर है। आप किसी की शान बयान कीजिए, अजमत बयान कीजिए, तो सामने से जवाब आता है कि वो तो इंसान थे। हुज़ूर पिरानी पीर ने खदमों की ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर दिया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो तो इंसान थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने तालाब के पानी को एक कूजे में बंद कर लिया, करे होंगे मगर इंसान थे। ऐसा बताया जाता है गोया खुदा न खास्ता इंसान होना कोई ऐब है। आप पहले ये तय कीजिए कि इंसान होना ऐब है क्या कमाल है? इंसान को पैदा करने वाले परवरदिगार की कसम, इंसान होना जितना बड़ा कमाल है, उससे बड़ा कमाल कोई किसी मखलूक में पैदा होना उतना बड़ा कमाल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया। और यहाँ पर आप एक बात याद रख लीजिए, खलीफा बोलते किसको है? खलीफा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उसको मोटे अल्फाज में, आसान अल्फाज में इस तरह आप बोल सकते हैं। खलीफा बोलते किसको है? असल की जगह उसके इख्तियारात को इस्तेमाल में लाने वाले को खलीफा कहते हैं। प्रिंसिपल कॉलेज तो नहीं आया तो जितने काम प्रिंसिपल कर सकता है, उस पूरे काम वाइस प्रिंसिपल करता है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला गायब होने से पाक है, अल्लाह ताला तो हमेशा हर जगह मौजूद है। खलीफा बोलते किसको है? तो अल्लाह ताला की मर्जी से उसकी कायनात में तसर्रुफ करने वाले को अल्लाह का खलीफा कहते हैं। सरकार पिरानी पीर की मशहूर मारूफ करामत है कि एक मरतबा कोई शख्स सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। गालिबन कोई बुढ़िया हाजिर हुई, अर्ज करने लगी कि सरकार हमारे घर में फलां शख्स का इंतकाल हो चुका है, आप उसकी रूह को वापस लौटा दीजिए, अल्लाह ताला ने आपको मुर्दों को जिंदा करने की करामत बख्शी है। सरकार गौसे पाक ने हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, इसकी रूह वापस लौटा दो। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से कब्ज़ की है, अब मैं अल्लाह का हुक्म मानूं कि आपका हुक्म मानूं? सरकार गौसे पाक ने फरमाया, तो इसकी रूह वापस लौटाता है कि नहीं? तुम इसकी रूह वापस लौटाना चाहते हो या नहीं? फरिश्ते ने कहा, सरकार मैं माजूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रिवायतों में आता है कि सरकार गौसे पाक ने अपने तसर्रुफ से, अपने इख्तियार से वो रूह छीन कर उस आदमी के जिस्म में दोबारा वापस लौटा दी। अज़ीज़ान गिरामी, इज़राइल अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए कि ये क्या मामला है। बड़ी हैरानी का मामला है कि मैंने इसकी रूह कब्ज़ की है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से, मैंने इसकी जान ली है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से, और हुज़ूर गौसे पाक ने इसको दोबारा जिंदा कर दिया। फरिश्ता अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया, परवरदिगार बड़ा अजीब व गरीब मामला देखने में आया, तू रूह कब्ज़ करने का हुक्म देता है, अब्दुल कादिर रूह लौटाने का हुक्म देते हैं। तो अल्लाह की तरफ से जवाब मिला कि फरिश्ते, अब्दुल कादिर ने जो भी किया है मेरे हुक्म से किया है, मेरी इजाजत से किया है। जिंदगी देना भी मेरा ही काम है, मौत देना भी मेरा ही काम है। मगर ऐ मौत के फरिश्ते, तुझे मालूम होना चाहिए, मैं जिस तरह मौत देने के लिए तुझे वसीला बना सकता हूँ, जिंदगी देने के लिए अब्दुल कादिर को वसीला बना सकता हूँ। जिंदगी देना अब्दुल कादिर का काम नहीं है, मौत देना इज़राइल का काम नहीं है।
अल-हय्युल क़य्यूम अल-मुहय्यी अल-मुमीत, मौत भी वही देता है, जिंदगी भी वही देता है। फर्क यह है कि अल्लाह ने जब मौत देना चाहा तो इजराइल को वसीला बनाया, और अल्लाह ने जब जिंदगी देना चाहा तो अब्दुल कादिर जिलानी को वसीला बनाया। अब यहाँ पर आकर बात रुकनी, आप सुबह से बयान सुन रहे हैं, आप बोलेंगे कि क्या मजबूत ठोस दलाइल से बातें हो रही थी, ये कौन सा किस्सा निकाल कर आप सुना दिए दरमियान में। अज़ीज़ान गिरामी, ये किस्सा किस्से के तौर पर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दलील मौजूद है। वो दलील मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। फरिश्ते का मुकाम और इंसान के मुकाम में जो फ़र्क है, मैं ये भी नहीं बोलता कि सरकार गौसे पाक इज़राइल अलैहिस्सलाम से अफजल है। वो अफजल होना मफजूल होना एक अलग बहस है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अपनी मर्जी चलाने का जो पावर दिया है, वो पावर फरिश्तों को भी अल्लाह ताला अता नहीं फरमाया। इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी चलाने का पावर दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, इसके सबूत में मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। मिशकात शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक का वक्त करीब आया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए। अर्ज किया कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। मूसा ने पूछा तो कौन है, क्यों आया है? इज़राइल ने कहा मैं मौत का फरिश्ता मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। दू बदू वल्टू जब ये बात हुई तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगम्बर थे, आपको जलाल आया। आपने एक तमाचा ऐसा रसीद किया कि इज़राइल अलैहिस्सलाम की आंख निकल गई। कोई लाल पीली किताब में से नहीं सुना रहा हूँ मैं, हदीस शरीफ है ये, मिशकात शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा, इज़राइल अलैहिस्सलाम की आंख निकल गई। जाकर बोले मैं इज़राइल हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ, क्या करता? आपकी रूह निकालने के लिए। मेरी रूह तो निकालता, एक मारे तो आगे निकल गई बाहर। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में हाजिर हुए, पलट कर गए, अर्ज करने लगे परवरदिगार तूने मुझे आज एक ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता। अब तक कितने लोगों की रूह में निकाल चुका हूँ, मगर ऐसा मामला कभी पेश नहीं आया। वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड हुआ था ऐसा मामला, सोचे भी नहीं होंगे, समझे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी होता। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की रूह निकाल दिए। आदमी जब कोई काम बार बार करते जाता है तो करते करते फेमिलियर हो जाता है, डर निकल जाता है, उसमें झिझक खत्म हो जाती है। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम कित्तों के रूह नहीं निकाले होंगे, कित्तों को मारकर नहीं फेंके होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी वही बेबाकी के साथ आकर हाथ डालने गए, एक तमाचा पलटा कर मारे तो आगे निकल गई। हदीस पाक के अल्फाज हैं, नबियों के इमाम रसूलों के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया परवरदिगार तूने मुझे अपने ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मरना ही नहीं चाहता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से जवाब मिला कि तुम जन्नत से एक गाय लेकर जाओ। अल्लाह ताला ये नहीं बोल रहा कि ऐसा करा उन्हें, ऐसा कैसा करा मेरा बंदा, ऐसा कैसा करे मूसा अलैहिस्सलाम, जब तुम मेरी मर्जी से गए तो उन्होंने ऐसा कैसा करे। अल्लाह ताला पूछना था मूसा अलैहिस्सलाम से, डांटना था, आप ऐसा क्यों करे, मैं भेजाया था। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं बोला, उल्टा इज़राइल अलैहिस्सलाम को क्या बोला, अब क्या करो, जन्नत से गाय लेकर जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करो हज़रत आप आना चाहते हैं क्या रहना चाहते हैं? अगर रहना चाहते हैं तो इस गाय की पुष्ट पर अपना दस्ते मुबारक फेर दीजिए, जितने गाय के बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उतने साल आपकी उम्र दराज फरमा देगा, उतने साल आपकी जिंदगी तवील कर दी जाएगी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम गाय लेकर मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अब देखे थे कि दू बदू जाने का नतीजा क्या निकला, डरते डरते पूरे अदब के साथ इजाज़त लेकर अंदर हाजिर हुए। इज़राइल आया हूँ, अंदर आने की इजाज़त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, अंदर गए। पूछे अब क्यों आया है? बोले सरकार कुछ भी नहीं, इजाज़त लेना है आपसे। क्या इजाज़त लेना है? अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म मिला है, आप आना चाहते हैं क्या, दुनिया में रहना चाहते हैं? अगर आप रहना चाहते हैं तो इस बैल की पुष्ट पर हाथ फिरा दीजिए, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उतने साल तक आपकी उम्र तवील फरमा देगा। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे अच्छी बात है, उतने साल तो उम्र लंबी हो जाएंगे, उतने साल के बाद क्या होगा फिर? अब कितने भी हज़ार साल होंगे, खिज़र अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी उम्र होंगी, उसके बाद क्या होगा पूछे। इज़राइल अलैहिस्सलाम बोले डरते डरते मैं क्या बोलूँ, अब आप समझ जाइए। अब भी देखे बोले तो क्या हाल हुआ था, बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। बोले सरकार आप समझ जाइए उसके बाद क्या होगा। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब आना ही है तो चलो, जब ना सही अब सही। मूसा अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी, आपकी रूह मुबारक कब्ज़ की गई। उलमा नुक्ता बयान फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को आखिर तमाचा क्यों मारा? क्या मूसा अलैहिस्सलाम मरना नहीं चाहते थे? पैगंबरों की मौत तो बराए नाम होती है, अंबिया को भी मौत आनी है, मगर इतनी के फ़कत आनी है और फिर उसके बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है। आपके जैसे हमारे जैसे मरने का मामला नहीं था, वो तो आने वाहिद के लिए अल्लाह के वादे को पूरा करने के लिए जायका चकाकर फिर हमेशा की जिंदगी मिलने वाली थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इज़राइल को तमाचा क्यों मारा? उलमा नुक्ता बयान फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहना नहीं चाहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा इसलिए रसीद किया ताकि इज़राइल अलैहिस्सलाम को पैगंबरों की बारगाह में हाजिर होने का अदब याद रहे। मूसा अलैहिस्सलाम को यह सबक देना चाहते थे कि इज़राइल आज तू बेधड़क यहाँ आ गया है,
कल नबियों के इमाम, रसूलों के ताजदार, हमारी जमात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह जमीन पर आने वाले हैं। अगर आज मैं तुझे इस तरह छोड़ दिया तो हो सकता है कि कल तू उनकी बारगाह में इसी तरह बेधड़क चला जाए। अभी से खबरदार कर रहा हूँ कि मूसा की बारगाह में जब बगैर इजाजत नहीं आ सकता, तो जिस जमात अंबिया के मुस्तफा बादशाह हैं उनकी बारगाह में बगैर इजाजत तो कैसे जा सकता है। इंसान का मुकाम अगर समझ में आ गया, इतने उलमाए किराम इतने बयानात किए हैं, ये हिदायत वो दलालत, इन्हों ऐसा बोलते उन्हों ऐसा बोलते, ये सब मुकाम बातें अपनी बात जगह है। इंसान का मुकाम अगर समझ में आ गया तो इंसान को हिदायत नसीब हो जाती है। इसलिए तो मौला कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने परवरदिगार को पहचान लिया। अल्लाह ताला को इंसान पहचानना तो कैसा पहचानना, इंसान अल्लाह ताला को पहचाने तो कैसे पहचाने। आदमी किसी को पहचानता है तो देखकर पहचानता है, सुनकर पहचानता है, पकड़कर पहचानता है, सेंसेस के जरिए पहचानता है, हवास के जरिए पहचानता है। और अल्लाह ताला की शान तो ये कोई इसको देख नहीं सकता, कोई इसकी आवाज़ सुन नहीं सकता, और पकड़ने झकड़ने से तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, वो तो नूर है जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। फिर अल्लाह को इंसान पहचाने तो कैसे पहचाने। कुरान में इसके 3 तरीके बताए गए हैं। मैं इख्तिसार के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आपको उस्ताद मोहतरम का खिताब समाप्त फरमाना है। तबर्रुकन में खड़ा हुआ हूँ, इख्तिसार के साथ जल्दी जल्दी अपनी बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी पहचान के 3 तरीके कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। तीनों तरीक़े कुरान पाक में बयान हुए हैं। पहला तरीक़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये बयान फरमाता है, देखो फला 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 चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। ऐसी कई आयतें हैं। मैं मिसाल के तौर पर एक मिसाल आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। सूरह आले इमरान के आखिरी रुकू में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना फी खल्क़िस समावात वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदाइश में, रात और दिन के बदलने में अकल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। तो इससे पता चलता है कि इंसान अल्लाह ताला को देख नहीं सकता, मगर अल्लाह की मखलूक को देखकर इंसान अल्लाह ताला को पहचान सकता है। अल्लाह को नहीं देख सकता, मगर जब इंसान सूरज को देखता है, चांद को देखता है, सितारों को देखता है, पहाड़ों को देखता है, तो इंसान को मालूम होता है कि ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद पैदा नहीं हुई, इनको एक पैदा करने वाला बहुत बड़ा परवरदिगार है। तो क्या फ़लसफ़ा है ये, मखलूक को देखो, खालिक को पहचानो। सीधा क्रिएशंस एंड उसके बाद मखलूक़ात को पहले देखो, उसके बाद पैदा करने वाले की शान को पहचानो। मखलूक के जरिए ही खालिक तक रसाई हो सकती है। जो लोग बराह रास्त मखलूक के वास्ते के बगैर खालिक तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, क़यामत तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ताला तक पहुंचने का तरीका यही है कि मखलूक को देखो, खालिक तक पहुंचो। मगर यहाँ भी शैतान लुढ़की जाने वालों को लुढ़की दिया। क्या लुढ़की दिया? बाद लोग क्या करें, मखलूक एक वसीला है खालिक को पहचानने का। लोग क्या करें, मखलूक ही को मकसद समझकर गुमराह हो गए। मिसाल के तौर पर समंदर एक अल्लाह की कुदरत की निशानी है, उसको देखकर उसके पैदा करने वाले की शान समझना है, लोग समंदर के सामने ही सर झुका दिया। मिसाल के तौर पर आग है, आग की ताकत को देखकर आग के पैदा करने वाले की ताकत समझना चाहिए, मगर लोग आग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मिसाल के तौर पर सूरज है, सूरज को पैदा करने वाले की पैदाइश का कुदरत का बड़ा सबूत है, मगर लोग इसी सूरज की परस्तिश शुरू कर दिए। चांद को देखकर कुछ उसकी परस्तिश में मशगूल हो गए। इसी के बारे में अल्लाह इकबाल कहते हैं, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। काफिर जब आफाक को देखता है हैरत में पड़ जाता है कि ये क्या अजीब व गरीब मामले हैं। मोमिन की शान ये होती है कि वो आफाक में गुम नहीं होता, आफाक का निज़ाम उसके हुक्म के ताबे होता है। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह को पहचानने का पहला तरीका तो ये है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों को देखो, अल्लाह को पहचानो। इसमें तो कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, सब मानते हैं। अब दूसरी शक्ल अल्लाह ताला को पहचानने की उससे कामिल है, वो क्या है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका जिक्र फरमाता है 25वें पारे के पहले रुकू में। इरशाद होता है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम अपनी कुदरत की निशानियां उनको दिखाएंगे आफाक में भी और खुद उनकी जानों में भी, यहाँ तक कि उन्हें मालूम हो जाएगा कि यह हक़ है। इस आयत मुबारका में इंसान का मुकाम बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला को पहचानने के लिए इंसान को पहचानना ज़रूरी है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लतीफ़ मैं उनको, वो धड़कनों में मेरी ही समाये बैठे हैं। जब तक आप इंसान के कमाल को नहीं समझेंगे, अल्लाह ताला के कमाल को नहीं समझ सकते। और अगर कोई इंसान के कमाल को समझ लेता है तो इंसान के खालिक के कमाल को समझना बहुत आसान है। अभी आपने तकरीरें समाअत की, कितने तरीक़ों से दलाइल दिए गए। मेरे को एक बात बताओ, दलील से कोई मानता? दलील से कोई मानता? मौजूदा देखकर नहीं मानते, दलील दिए तो मानते हैं, सबूत दिए तो मानते हैं।
आंखों से चांद के 2 टुकड़े होता हो, देखा नहीं मानता, बोला आप क्या करते हैं? कंकरियां कलमा पड़े तो नहीं मानता, कंकरियां फेंक दिया उल्टा। ऐसा दलीलों से सबूतों से मानना रहता तो पूरी इंसानियत एक झंडे के नीचे जमा रहती थी। आज दलीला देने वाले दलीलें देते हैं, मौजूदे दिखाने वाले मौजूदे दिखाते हैं, करामतें दिखाने वाले करामतें दिखाते हैं, मगर इसका फायदा क्या अपोजिशन को होता क्या? अज़ीज़ान गिरामी, एक बात याद रखिए, दलाइल का फायदा मुनकिरों को नहीं होता। अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उनके ईमान में दलाइल से मजबूती आती है। करामतों का फायदा मुनकिरों को नहीं होता, जो पहले से खुशअकीदा है उनकी खुशअकीदगी और मजबूत हो जाती है करामतें देखकर। मौजिज़ों का फायदा काफिरों, इनकार करने वाले काफिरों को नहीं होता, जो पहले से रसूल पर ईमान ला चुके उनका ईमान और मजबूत होता है। अज़ीज़ान गिरामी, मौजिज़े और करामतें जो ज़ाहिर होती हैं दर हकीकत ये मानने वालों के ईमान में, उनके यकीन में और ताज़गी पैदा करने के लिए होती हैं। अब अल्लाह ताला को पहचानने की बात की जा रही है, कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई दलीलें दे रहा है, कोई प्रूफ है, इस वास्ते खानखाई निज़ाम में क्या बताते हैं, अल्लाह को पहचानना है तो पहले अल्लाह के एक बंदे को देखो, पहले उससे करीब हो जाओ, गौसे आज़म को समझ जाओ, अब्दुल कादिर को समझोगे तो कादिर मुतलक की खुद को समझ में आ जाएगी। इंसान को पहले देखो, इंसान की शान जब समझ में आएगी तो खुदा की शान समझ में आएगी। मगर यहाँ पर इंसान को समझने से धोखा नहीं खाना चाहिए। काफिरों में और हम में फर्क क्या है? अब वैसा इंसान की हकीकत समझकर लोग इंसानों को भी सजदे करने लगे, उनकी इबादतें करने लगे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान तो मशहूर है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी की इस कदर तरक्की याफ्ता मंजिलें तय हो जाने के बावजूद जिंदा इंसानों को बिठाकर पूजा होती है हमारे हिंदुस्तान में आज भी। अब मैं नामा निशाना क्यों लोग आपको खुद मालूम है, जिंदा इंसानों को सामने बिठाकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करते हैं। वो चलो पुराने ज़माने में बैकवर्ड लोग, इल्म नहीं था, मालूमात नहीं थे, कुछ भी नहीं था, क्या भी नहीं था, वो क्या करे क्या नहीं करे, इतना सब मालूम रखने के बावजूद चांद पर जाकर आगे मरीख में जाने की बात चल रही, अपने जैसे इंसान को सामने बिठाकर तो खुदा है बोलकर उसकी पूजा करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये भी गलत है, मगर आप याद रखिए इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पास भी इंसान की अहमियत मानी जाती है, काफिरों के पास भी इंसान की अहमियत मानी जाती है। फर्क ये है कि काफिर जब इंसान की अहमियत समझने आता है तो इंसान को ही खुदा बोल देता है, और जब हम इंसान की अहमियत समझते हैं तो खुदा नहीं कहते, खुदा का खलीफा कहते हैं। अब शिर्क का शाइबा ही कहाँ रहा? और बात लोग बोले कि नहीं शिर्क होता, शिर्क होता। बुखारी शरीफ की हदीसों में है कि हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, मुझे डर नहीं है कि मेरी उम्मत मेरे बाद शिर्क करेगी। 1400 साल हो गए सरकार पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमाना बिल्कुल बजा साबित हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है, बज़ाहिर हयात में है, बज़ाहिर सिर्फ तौरेत शरीफ लेने के लिए अल्लाह ताला 1 महीने के लिए तूर पर बुलाया। वहाँ जाने के बाद 10 दिन बढ़ा दिया अल्लाह ताला मीक़ात। 1 महीने की जगह 40 दिन हुए तो बछड़ा बनाकर पूजा शुरू कर दिए थे हम। सिर्फ 30-40 दिन के अंदर ऐसा शिर्क शुरू करे। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर तशरीफ ले गए कि नहीं की, और उनकी पूजा शुरू हुई, उनकी इबादत शुरू हुई। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम की तारीख में आप ये बात देख सकते हैं, 1400 साल का लंबा ज़माना गुजर चुका, मगर खुदा की कसम आज तक उम्मत मुस्तफ़ा में कोई मुशरिक नहीं है। कोई जाहिल से जाहिल, अनपढ़ से अनपढ़ किसी को खुदा के बराबर नहीं समझता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुज़िश्ता पैगम्बरों की उम्मतें शिर्क में मुब्तला होकर हलाक हो गई, मेरी उम्मत के शिर्क में मुब्तला होने का मुझे डर नहीं है, मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में हलाक होगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना बिल्कुल बजा साबित हुआ। वैसे भी एक बात देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक लास्ट पॉइंट होता है। अब इंसानों के कमालात को देखकर शिर्क में मुब्तला होने की बात जो है, हुजूर गौसे पाक पैदा हो गए दुनिया में, इसके बावजूद हम शिर्क नहीं करें। अब शिर्क करने का रास्ता ही क्या बचा हमारे वास्ते? 600 साल पुरानी खबर को अब्दुल कादिर जिलानी ने एक ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हो गया। हमने अब्दुल कादिर जिलानी के जैसे कुदरत वाले वली को देखा, इसके बावजूद हम शिर्क नहीं करे। अब कौन माँ का बेटा क्या हमको कमाल दिखाने वाला है जिसको देखकर हम शिर्क करेंगे? जिस कौम ने अब्दुल कादिर जिलानी को देखकर भी जिस उम्मत ने शिर्क नहीं किया, 600 साल के खबरों के मुर्दों को ठोकरें मारकर जिलाते हुए देखकर भी जिस उम्मत ने शिर्क नहीं किया, आगे चलकर उस उम्मत के शिर्क में मुब्तला होने का खौफ ही क्या बाकी रहा, अंदेशा ही क्या बाकी रहा? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पहचानने का तीसरा तरीका है जिसका अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र फरमाता है सूरह निसा में। इरशाद होता है, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ चुकी है और हमने खुला नूर, खुली रोशनी तुम में नाज़िल फरमा दी। जलालैन जो मोतबर तरीन तफसीर समझी जाती है, जिसमें कौल मुख्तार ही लिया गया है, उसमें लिखा गया है कि नूर मुबीन से मुराद मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत की निशानी दिया। मैं बात समझ रहा हूँ, 3 मुख्तलिफ मुकामात से 3 आयतें मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला को इंसान ना तो देख सकता है, ना बराह रास्त उसकी बात सुन सकता है, तो फिर अल्लाह को पहचाने कैसे? कुरान पाक में इसके 3 तरीके मिलते हैं। एक तो कायनात को देखे, कायनात के पैदा करने वाले परवरदिगार को पहचाने, ये इरफान होता है, मगर ये इरफान थोड़ा नाकिस होता है।
दूसरा इरफान कामिल दर्जे का इरफान होता है, वो क्या है? इंसान किसी वली की शान को समझे, किसी नबी की शान को समझे। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, इंसान पहले इंसान का मुकाम समझे, उसका मर्तबा समझे, इंसान को समझकर इंसान के पैदा करने वाले को समझे। ये इरफान कामिल दर्जे का होता है। और तीसरा जो इरफान का आखिरी दर्जा होता है, जो कामिल तरीन दर्जा है, वो दर्जा ये है कि इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को समझे, जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नूर मुबीन कहा, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी को दलील कहा। आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप में से वो कौन है जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वाकिफ़ नहीं है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का एक वाक़िया है। मोइनुद्दीन नदवी ने, शुबली नोमानी वगैरह ने भी हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस करामत को जिक्र फरमाया है। यानी दो नाम मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, मोइनुद्दीन नदवी और शुबली नोमानी। ये ऐसे नाम है जो तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमान उनको बड़े हिस्टोरियन समझते हैं, उनके मौरख़ होने पर बड़ा एतबार है दुनिया का। और फिर नज़रियाती तौर पर वो लोग दरगाह निज़ाम से, खानखाही निज़ाम से, सूफियाना निज़ाम से कभी वाबस्ता नहीं रहे, बल्कि उसके बरक्स रहे। उन लोगों ने भी अपनी किताबों में रिवायत नकल की है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र के गवर्नर बनकर गए हैं। बारिश बरसने का ज़माना आया, नदी और मिस्र में जो दरिया बहता है, दरियाए नील, उसमें पानी चढ़ नहीं रहा है। पानी चढ़ने का ज़माना आ गया मगर पानी चढ़ नहीं रहा है। हमारे हिंदुस्तान में आप देखते हैं सौों की तादाद में नदियाँ पाई जाती हैं, मगर मुल्क मिस्र की खूबी ये है, उसका एक इनफरादी उसकी शान ये है कि एक ही दरिया पूरे मुल्क को सैराब करता है, दरिया नील, जो दरिया होने के बावजूद समंदरों के जैसी मुशाबियत रखता है। दरियाए नील का पानी चढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। आप यूँ समझ जाइए, दरियाए नील के बगैर मिस्र में ज़िंदगी का कोई तस्वर ही नहीं हो सकता। पूरी खेतियाँ, पूरी ग़िज़ाएँ, गल्ले वगैरह सब उस पर डिपेंड होते हैं। पानी नहीं चढ़ रहा था। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिक्र हुई, लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसी करामत मैं आपके सामने सुना रहा हूँ कि तमाम हिंदुस्तान के जितने लोग इल्मी एतबार से जाने माने हैं, उन तमाम ने इसको तस्लीम किया है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है, पानी नहीं चढ़ रहा है, अमर बिन आस परेशान है। लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ पर एक तरीक़ा है कि हर साल एक कंवारी लड़की को दुल्हन बनाकर, सजाकर, संवार कर ले जाकर दरियाए नील में डुबो देते हैं, उसके बाद पानी चढ़ता है, उसके बगैर पानी नहीं चढ़ता है। बरसा बरस से सदियों से रीत चली आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा है, ये बहुत पुराना रिवाज है, यहाँ का पुरानी रिवायत है। अब आप भी ऐसा कीजिए, फिर देखिए कैसे पानी चढ़ता है। अमर बिन आस ने कहा, वो जाहिलियत का ज़माना था, कुफ्र का ज़माना था, पैगम्बरों की तालीमात नहीं थी, तुम लोगों को क्या करे क्या नहीं करते अलग बात है। एक जिंदा इंसान को पानी में ले जाकर कैसा डुबो सकते हैं? खून नाहक, तो हुकूकुल इबाद में जो सबसे पहला सवाल होगा क़यामत के दिन, वो खून नाहक का होगा। हुकूकुल्लाह में पहला सवाल नमाज का, हुकूकुल इबाद में पहला सवाल खून नाहक का होगा। अमर बिन आस ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, इसका हुक्म तो मैं नहीं दे सकता। एक हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, पानी चढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जमा हो गए अमर बिन आस के पास। कहा कि अब अगर आप हमारी इस कदीम रिवायत को बाकी नहीं रखेंगे, तो एक बच्ची की जान आप बचाने गए तो अब देखेंगे आपके खैर पड़ेगा तो हज़ारों जनाजे उठेंगे घर घर से। अब क्या बड़े नुकसान से बचने, छोटे नुकसान को बर्दाश्त कर लीजिए। वो एक जान गई तो इतने लोगों की जान तो बचती, वो एक जान नहीं दी है, पानी नहीं चढ़ा, हज़ारों लोग मर जाएंगे खैर से। और पुराने ज़माने में क्या है, हमलो नकल की मौजूदा जैसी सहूलतें हैं, इधर से सामान उधर ले जाने की ऐसी सहूलतें भी तो नहीं थी पुराने ज़माने में। खैर पड़ता था तो लोग मर जाते थे, सौों में, हज़ारों में मौतें होती थी। लोगों ने कहा, हज़रत ये कहा कि अक्लमंदी है, आप एक कंवारी लड़की की जान बचाने के लिए पूरे मुल्क को हलाकत में डाल रहे हैं। खेतियाँ नहीं उगेंगी, गल्ले नहीं उगेंगे, फसल नहीं पकेंगी तो लोग खाएंगे क्या, मर जाएंगे भूखों से। एक जान जाना बेहतर है क्या, इतने लोगों की जान जाना बेहतर है? अमर बिन आस परेशान हो गए कि ये तो बड़ा खतरनाक मामला होगा, सेंसिटिव मसला होगा, ये तो बहुत बारीक तो रहा होगा मसला। अब बात भी अपनी जगह माकूल दिखी, तो आपने कहा ये मसला ऐसा मसला है कि मैं अपने तौर पर हल नहीं करूँगा, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं ख़त लिखता हूँ, आपके मशवरे पर मैं अमल करूँगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ख़त लिखा। मामला ऐसा है, हज़रत उमर ने वहाँ से जवाब लिखा अमर बिन आस को, हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब लिखा। जवाब में क्या लिखा, एक ख़त मैं दरियाए नील के नाम रवाना कर रहा हूँ, ये ख़त ले जाकर दरियाए नील में डाल दो। इंसान कौन है आपको मालूम होता है? इंसान किसे कहते हैं? बशर्ते कि इंसान सही मानों में अल्लाह का सच्चा बंदा बन जाए, मुस्तफ़ा का पक्का गुलाम बन जाए, तो फिर देखिए आप इंसान का मुकाम क्या होता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लेटर लिखा। किसके नाम लिखा? नदी के नाम लेटर लिखे। आज साइंस टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आप बताइए कोई नदी लेटर पढ़ने के मौक़िफ़ में है क्या? आज 1400 साल का ज़माना गुजर गया ना, इतना लंबा। बहुत खुश हैं हम, बहुत बड़ी तरक्की कर ली, हम चांद में पहुँच गए।
चांद में पहुंच गए तो कौन सा कमाल करें, काफिरा परेशान है, वाह क्या तरक्की होगी, क्या तरक्की होगी, चांद में पहुंच गया इंसान, क्या बड़ी तरक्की है। मुसलमान परेशान होते हैं ऐसी बात। अरे चांद में पहुंचकर उनको डराओ, चांद जिनके लिए दूर की चीज है। हमारे नबी मेराज की रात वहां तक जाकर आ गए जहां चांद की भी पहुंच नहीं है, हम चांद से क्या करेंगे। और हैरत की बात यह है, चांद में पहुंचकर खुश हो रहे हैं, मरीख में पहुंचकर खुश हो रहे हैं, ये कमाल नहीं है। इंसान खुद चांद बनकर जगमगाए, ये कमाल की बात है। महर आलम ताप बनकर जगमगाना है, अगर चांद में जाकर खुश होना है, मोमिन की शान नहीं है। मोमिन तो सूरज की तरह बैठे जगह चमकना, महर आलम ताप बनकर जगमगाना है अगर। चांद क्या है, चांद से भी दूर जाना है अगर। महर आलम ताप बनकर जगमगाना है अगर। चांद क्या है, चांद से भी दूर जाना है अगर। हाजिरी दो माह तैबा के हसी दरबार में, सर झुका दो सरवरे कौनैन की सरकार में। अज़मते मेराज इंसान का पता मिल जाएगा, चांद क्या है उनके मिलने से खुदा मिल जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अमर बिन आस ने खत लिखा, किसके नाम लिखा, दरिया के नाम लिखा। हमारे सरकार शाह अब्दुल लतीफ लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब राजा की बेटी को जिंदा करना चाहे, एक नक्श लिखकर परिंदे की गर्दन में बांधकर उड़ाए। ये करामत है, वैसे बात हमारे तो क्या बोलते हैं, हंसते लोग ऐसे साइंस के टेक्नोलॉजी के जमाने, परिंदे के गर्दन में नक्श बने कहते, सांप आया कहते, ऐसा हुआ कहते। अब हंसो, अपनी अपनी खिदमत की बात है। अब इसको क्या बोलते हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जो नदी को खत लिखे उसको क्या बोलते हैं। सहाबा किराम की तो वो शान है कि उनके बारे में अगर कोई बुरा सोचा तो सोचने वाला बुरा है, अगर कोई उनके बारे में कोई गलत ख्याल भी जहन में लाया तो वो खुद गुमराह है, बदबख्त है। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला दरिया के नाम पर लिखा, सुनिए आप कभी ऐसा होता। ये है असल में इंसान का मुकाम। क्या लिखे दरिया नील को खत में। अब लोग क्या करते हैं, दरिया में पानी चढ़ने के वास्ते उसकी पूजा करते हैं, नारे लगा कर चढ़ाते हैं, वो नींबू काट कर दरिया को नजर पेश करते हैं, वो जानवरों के झटके मार कर देते हैं, क्या क्या करते हैं। मुशरिकों में क्या क्या रिवाज है। मुस्तफ़ा के गुलामों की शान क्या होती है, देखिए। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मिला खत तो ले जाकर दरिया में डाल दिए। खत में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या लिखा था, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत में लिखा, ऐ दरियाए नील, दरिया को खत लिख रहे हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ऐ दरियाए नील। आपको मेरी बात पर अगर भरोसा नहीं है, बहुत अहम बात बोलूँ मैं, आपको किसके ऊपर भरोसा है, कौन से आलिम के ऊपर भरोसा है, उनसे आप पूछो ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरी बात पर भरोसा अगर नहीं है, आपको किसके ऊपर भरोसा है, उनसे आप पूछो, आप तस्दीक करा लीजिए बाद में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा कि ऐ दरियाए नील, तू अगर अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। ऐ दरियाए नील, तू अगर अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो मैं रसूलुल्लाह का खलीफा तुझे हुक्म देता हूं, अभी बहना शुरू कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी, खत जैसे ही ले जाकर दरियाए नील में डाला गया, तारीख गवाह है, तारीख के औराक गवाही दे रहे हैं। जैसे ही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नोटिस दरिया में डाली गई, हजारों साल की रस्म बंद हुई, पानी उमट उमट कर आने लगा, देखते ही देखते दरिया पानी से लबरेज हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, ये है इंसान का मुकाम। मगर ये बातें किनको समझ में आती हैं, जो करीब होने वाले हैं, भागने वालों को कहाँ से समझ में आएंगे। बहरहाल ये भी मैं जो आपके सामने रखता हूँ, इतने पक्के दलील दिया, इतने किताबों के नाम बोला तो भी मान देगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े करे, नहीं माने। अज़ीज़ान गिरामी, ये रहा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तियार। अब रही बात हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की, उनके इख्तियारात के ताल्लुक से क्या कहा जाए। सरकार पाक अलैहिस्सलाम का तो मामला ये है, दुआ करने की जरूरत नहीं है, निगाहें उठती हैं तो क़िबला बदल जाता है, उंगली उठती है तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाता है, उंगली पानी में रखते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, इशारा करते हैं तो दुश्मन के हाथ में कंकर या उनके नाम का कलमा पड़ता है। याद रखिए, ईमान और अकीदे की मजबूती के बाद अमल सालेह को इख्तियार करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। चूँकि आपको हज़रत उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला का जलीलुल क़द्र बसीरत अफरोज़ खिताब समाप्त करना है, इसलिए मैं इन कलिमात पर अपनी बात को इख्तिताम की तरफ पहुँचाते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जज़्ब दुआ हूँ कि परवरदिगार आलम, जितने लोग इस जलसे में, इस एक रोज़ा इज्तिमा में हाज़िर हुए, उन तमाम के दिलों में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची हकीकी मोहब्बत का चराग रोशन फरमा दे। बदअक़ीदियों, गुमराहियों, बदतमीज़ियों, बेअदबियों से हमारे ईमान की, हमारे अक़ीदे की हिफाजत फरमाए, हमारे आमाल में इस्लाह फरमा दे, शरीयत मुतहरा की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तक़ब्बल मिन्ना या समीउ या अलीम, तुब अलैना या तव्वाब या रहीम। सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन मुस्तफ़ा व अहमदिन मुज्तबा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन दाइमन अबदा।